اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، یہ ملا جلا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب ناظرین، ہم انفارمیشن کے پروگرام کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کا ٹائم لیتے ہیں۔ مرزا ندیم بیگ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، اکثر آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، اپنا ویلاگ بھی ڈیلی کرتے ہیں، اور جو ان کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ پوری دنیا کی وہ بھی سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور بڑا کامیاب پروگرام ان کا ہوتا ہے۔ تو یہ جانی پہچانی شخصیت ہے اسپین میں۔ تو آپ کو پتہ ہے گرمی کے لحاظ سے ڈنمارک میں کتنی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، رات کو بادل کڑکے چمکے برسے، اور لیکن اس کے باوجود آج اس وقت جو ہے وہ سخت دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ تو ہم نے کہا کیوں نہ ٹمپریچر کے حوالے سے، اور ایک ان کا ویلاگ ہم نے دیکھا کہ اندھیرے میں سونا جو ہے یہ خطرناک ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ مرزا ندیم بیگ صاحب آپ کو کوپن ایگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر بہت مہربانی راج صاحب، آپ کا اور آپ کے تمام لسنرز کا شکریہ، آپ کی بڑی بڑی مہربانی سر۔ مرزا صاحب، سب سے پہلے تو گرمی کے متعلق آپ سے بات کریں گے، گرمی کا کیا حال ہے آپ کے پاس؟ سر گرمی بہت زیادہ ہے یہاں پہ، تو بعض علاقوں میں 40-44 تک جو ہے ٹمپریچر پہنچا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 250 کے قریب جو ہے وہ اس وقت یہاں پر لوگ مر چکے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ تو گرمی نے جو ہے یہاں کے لوگوں کو ستا کر رکھ دیا ہے، اور آج بھی جو یہاں پر بارسلونا میں جو دھوپ نکلی ہوئی ہے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کہیں پاکستان میں آپ پھر رہے ہیں، کیونکہ دھوپ کی جو تمازت ہے وہ بالکل ایسی ہی فیلنگ دیتی ہے۔ تو مرزا صاحب یہ جو جی، پھر کاروبار زندگی کیسے چلتا ہے؟ بلکہ کاروبار زندگی تو خط چل ہی رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کوسٹل ایریا ہے، سمندری علاقہ ہے ساتھ، تو ہوا چلتی رہتی ہے، تو جب آپ چھاؤں میں ہوتے ہیں تو وہ قابل برداشت ہوتی ہے، لیکن دھوپ میں کام کرنے والے، اور یہ گورنمنٹ نے یہاں پر جو ہے ایسے ورکرز کے جو دھوپ میں کام کرتے ہیں، خاص طور پہ کنسٹرکشن کے ورکر یا صفائی کے ورکر جو ہے شہروں کے اندر جو سڑکوں پہ کام کرتے ہیں، یا اور دیگر ایسے لوگ کے جو کھلے آسمان کے تلے بیٹھ کر جو ہے اپنا کام کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ آفر دیا ہے کہ وہ ٹائمنگ اپنی تبدیل کر لیں کام کی، اور ایسی ٹائمنگ رکھے کہ جس میں دھوپ جو ہے اس کا سامنا ان کو زیادہ نہ کرنا پڑے۔ تو یہ اس حوالے سے کافی تدبیریں ہیں۔ پھر لوگوں کو احتیاط کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جو ہے یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کا جو ہے معاملہ نہ کریں، گھر سے نکلیں تو کپڑا سر پر لے کر نکلیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھانپ کر نکلیں، یا چھتری جو ہے وہ اس کو ساتھ رکھے تاکہ وہ آپ کو دھوپ سے جو ہے وہ بچا کے رکھے۔ تو جو بچوں کو تو ویسے ہی چھٹیاں اسکولوں میں، تو اس حوالے سے تو کوئی خاص ایسا معاملہ نہیں ہے۔ مرزا صاحب، ہمیں نہانے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور سمندر میں جا کر لوگ نہاتے ہیں، ڈبکیاں لگاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ٹمپریچر میں جب بندہ باہر نکلتا ہے تو ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے، اندر جاتا ہے تو پھر وہ جسے کہتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہوتے ہیں، وہ بخور پڑ جاتے ہیں، کڑل پڑ جاتے ہیں، وہ آپ جو ہے وہ، جی جی تو اس کی وجہ سے بھی اموات واقع ہو سکتی ہیں، پھر بندہ جو ہے تیر نہیں سکتا، ٹانگیں چلا نہیں سکتا۔ جی جی تو لیکن جو میں آپ کو بتاؤں کہ گرمی کا جو توڑ یہاں پہ ہے نا، پاکستان میں جیسا ہوتا ہے کہ آپ نہر پہ چلے جاتے ہیں تربوز لے کے اور دہانا پانی چھوٹ کے نہانا، تو یہاں پر بھی جو ہے نا سب سے بڑا ان کا جو گرمی کا توڑ کا ذریعہ ہے نا، یہ تو سمندر سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہمارے لوگوں کی سوچ ہے کہ وہاں پہ کڑل پر جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو ایک ایسی پرابلم نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ بیچ کے اوپر جا کر اپنے آپ کو بہت ایزی محسوس کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ان کا جو ہے یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ گیدرنگ ہوتی ہے۔ بلکہ آج کل جو ہے اسپین بلکہ اپنے بیچز کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے، اور اپنے موسم کی وجہ سے، کیونکہ جو گرمی یہاں پہ پڑتی ہے اور وہ بیچ پر جا کر نہانا، وہ جو ہے وہاں پر یہ جو ہے یہاں کی بہت ہی جو ہے محبوب مشغلہ ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں، اور اسی حوالے سے لوگ جو ہے وہ اسپین کا رخ کرتے ہیں چھٹیوں میں۔ مرزا صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ لوگ اسپین کا رخ کرتے ہیں، ٹورسٹ تو بہت آتا ہے اسپین میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جو سیاسی ٹورسٹ آتا ہے خاص کر اپنے ممالک سے، وہ ٹورسٹ کتنا آیا ہوا ہے؟ سر نہیں، وہ آج کل کم ہوا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ اس کی، ورنہ پہلے آتے تھے، لیکن جو آتے بھی ہیں تو وہ چھپ چھپا کے آتے ہیں، یعنی کہ وہ پبلکلی اپنے آپ کو جو ہے وہ نہیں پیش کرتے۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ایسے علاقوں پہ آتے ہیں کہ جیسے یہاں کے آئس لینڈ ہے، تو وہ کسی آئس لینڈ پہ آ کے جو ہے وہ ڈیرا لگا لیتے ہیں، تو وہاں اتنے لوگ ہوتے بھی نہیں کہ جو ان کو پہچان سکیں، تو لہٰذا وہ ادھر سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ بارسلونا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ بہت بڑا ہب ہے پاکستانیوں کے حوالے سے بھی، تو وہاں پہ جو ہے ان کی اپیرنس بہت کم ہوتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو پچھلے دنوں بھی ایک سیاستدان آئے تھے، تو مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور بتا رہا تھا دوست کہ اس کو انہوں نے ہائر کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا وہ چونکہ پاکستانی تھا ڈرائیور، تو اس نے کہا کہ جی میرے بارے میں یہ لوگوں کو نہ بتائیے گا کہ میں یہاں پر موجود ہوں،
और वो पूरा हफ्ता यहाँ पे रह के गया है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई सर। तो इन्हीं सियासतदानों को जब लोग वोट देते हैं तो शर्म नहीं आती जब सियासतदान ये कहते हैं कि मेरा बताना नहीं कि मैं इस मुल्क में मौजूद हूँ। सर शर्म की बात तो खैर हमारी पूरी कौम के अंदर नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान के एक इस्लामी स्कॉलर थे डॉक्टर इसरार अहमद साहब, वो ये कहा करते थे कि पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत जो है वो मुनाफिक है। तो वोटर भी उसी तरह के हैं, लीडर भी उसी तरह के हैं। हर कोई जो है वो एक दूसरे को दप्पा लगाने के चक्कर में रहता है। तो लिहाजा आवाम भी वैसी है। वो जैसे वैसे भी कहा जाता है कि जैसियाँ रूहां वैसे फरिश्ते। तो जैसी हमारी आवाम है सर वैसे ही हमारे लीडर हैं। तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। वो ये जो है आप देख लें कि हालाँकि सबको पता होता है कि इनकी गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया है या किस तरह का बिहेव किया है। लेकिन उसके बावजूद सर नारे हर दफ़ा जो है वो इन लोगों के ही लगते हैं और उन्हीं को ही वोट दिए जाते हैं और उन्हीं के झंडे उठाकर जो है वो कौम फिर रही होती है। तो लिहाज़ा इस हवाले से ये ना कहें कि आवाम जो है उनको पता नहीं होता, पता भी हो तो वो कुछ नहीं कर सकते सर। वो फिर भी दस्ते निगर इनके हैं। मेरा साहब हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे देख रहे थे, आप सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप खुद एक्टिव रहते हैं, कि मोनो सलाई साहब एक नाम है, बड़ा नाम है पाकिस्तान का, जहाँ जो आपके पास या पता नहीं स्पेन में किस जगह पर या किसी आइलैंड में मौजूद है। वो नहीं काफ़ी बार्सिलोना में डेरों है। पर जा रहे थे, बड़ी दावतें हो रही थी, क्या वो कम बैक है? नहीं कमबैक तो कोई नहीं है सर। वो चूँकि अब यहाँ पे रहते हुए अपनी प्रेज़ेंस भी शो करनी पड़ती है। फिर जो ख़ास तौर पे उनके जो हलके के लोग होते हैं, वो जो शाह से ज़्यादा शाह से वफ़ादार वाले, वो जो है वो इसमें ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाते हैं और वो ये साबित करते हैं कि जी हमारे लीडर अब भी जो है बड़े फ़ाल हैं। तो होता ये है कि वो ऐसे तो वो बार्सिलोना में ही बेस्ड हैं और बार्सिलोना में उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, फ्लैट है यहाँ पर उनके अपने बड़े लग्ज़री किस्म के, तो वो उन्हीं में रहते हैं। लेकिन बाकी जो है वो दीगर इलाकों में अगर कभी उनका जाना भी होता है, तो उनके पार्टी से जो अटैच लोग हैं, वही उनको बुलाते हैं और वो वहाँ पर जाते हैं। फिर ज़ाहिर बात है कि दावतें तो होती है, लेकिन अभी तक कोई उसने कम कम बहुत ही कम है कि कोई पब्लिक गैदरिंग से खिताब किया हो। एक ही उसने प्रोग्राम किया था तो वो उससे बहुत मुतनाज़ हो गया था, क्योंकि वो प्रोग्राम करने वाले भी ऐसे लोग थे कि जिसकी वजह से बहुत पाकिस्तानी मीडिया में उनका जो है वो उछाला गया था। लिहाज़ा वो यहाँ पर जो है वो ऐसी दावतें तो ज़रूर खाते हैं, लेकिन होता है ना कि उसमें कोई प्रोग्राम में खिताब करना या कोई पब्लिक से एड्रेस करना वो नहीं होता। मिर्ज़ा साहब आजकल वीज़े की बड़ी बात होती है कि इमिग्रेशन खुली हुई है, लोगों को सहूलियात मिल रही हैं, लोग सेट हो रहे हैं, तो कानून क्या कहता है? नहीं सर, सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि वीज़ा उसकी बुनियाद के ऊपर किसी को नहीं दिया गया। ये ऑलरेडी जो लोग पहले से स्पेन के अंदर मौजूद थे और उसमें कंडीशन ये रखी थी कि जो 31 दिसंबर 2025 से पहले यहाँ पर 5 महीने पहले यहाँ मौजूद थे, उन लोगों को ही जो है वो एंटरटेन किया जाएगा और उनको ही किया जा रहा है। वो भी इस बुनियाद के ऊपर कि अगर उनके पास उस 5 माह के जो उससे कबल के उनका यहाँ पे स्टे है, उसमें उनके पास कोई उनके प्रूफ़ हैं और प्रूफ़ में क्या है कि उनके पास अगर कोई मेडिकल कार्ड है, उनके पास कोई डॉक्टर का सीटा यानी कि अपॉइंटमेंट है, इस तरह से और कोई चीज़ें या घर की रजिस्ट्रेशन जो पादरोन कहलाती है, वो उनकी यहाँ पर है। तो उसके बेस पर उन्हीं को किया जाएगा। वीज़े की बुनियाद पर ना इन्होंने किसी को बुलाया है, ना इसकी बुनियाद के ऊपर कोई वीज़े दिए जा रहे हैं और वो प्रोसेस चल रहा था। अब ये 30 जून है, तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। अभी तक उसकी जो है एक्सटेंशन की कोई इत्तला नहीं आई, बल्कि गवर्नमेंट का जो है वो टारगेट था कि 7 लाख यहाँ पर टोटल जो है इल्लीगल लोग रहते हैं, उनमें से 5 लाख को लीगल किया जाएगा। तो लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है कि जो पेपर जमा करवाने वाला फिगर है, वो करीबन 10 लाख तक पहुँच गया है। तो अब उससे अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर क्या कैफ़ियत है सर। मिर्ज़ा साहब मैं देख रहा था, आपका एक वीलॉग देख रहा था जिसमें आपने अंधेरे में सोने को ख़तरा करार दिया है, ज़रा हमारे सामने नाज़रीन से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। सर ये मेरी तहकीक नहीं है, ये माहिरीन की तहकीक है और उन्होंने कहा है कि ये जो हम बाज़ दफ़ा अंधेरे में कमरे में अंधेरा करके और विंडो के जो क्लोज़र होते हैं या शटर होते हैं, उसको भी डाउन कर देते हैं और बिल्कुल गुप अंधेरा करके सोते हैं, तो रोशनी जो है सुबह को वो बिल्कुल सूरज की जो है वो कमरे में दाखिल नहीं होती। तो उनका ये कहना है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हर सिस्टम जो है वो रखा हुआ है, जैसे कि अब तो अतिब्बा भी ये कहने लग गए हैं, तो वैसे तो ये बड़ी मारूफ बात है कि अगर आप रात की नींद पूरी करेंगे, टाइम से सो जाएँगे यानी 10 बजे के बाद अगर आप सो जाते हैं
और सुबह को जब आप उठते हैं तो इस दौरान जो आपके जिस्म के अंदर दिन भर जो डेप्रिसिएशन हो जाती है, कि जो टूट-फूट होती है, उसको अल्लाह तबारक व तआला उस रात की नींद के ज़रिए से रिपेयर करता है। तो इसी तरह से ये मामला है कि वो कहा गया है कि जैसे आप खिड़की थोड़ी-सी खुली रखेंगे, तो उससे जब आपको वो दिन की रोशनी अंदर आएगी, तो वो आपके जो है माइंड को ये सिग्नल देगी कि आप जो है उठ जाएँ। आपने देखा होगा कि बसा औकात इंसान जो है वो अंधेरे कमरे में या ऐसी जगह पे सोता है कि जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर पता ही नहीं चलता कि इस वक़्त दिन है कि रात है। और इसी मुगालते में लोग पड़े रहते हैं कि अभी तो यार दिन है और सुबह रात है, तो सुबह तो अभी हुई नहीं है। तो आपने देखा होगा कि वो लोग जो है, अगर उन्होंने अर्ली इन द मॉर्निंग उठना हो, तो वो 10-11 बजे भी यही समझ रहे होते हैं कि अभी शायद फजर का भी टाइम नहीं हुआ। तो ये उसमें कबाहत है कि उन्होंने कहा कि अंधेरे कमरे के अंदर जो है, अपने आप को सुलाना वो बेहतर नहीं है, बल्कि आप जो है वो खिड़की का विंडो जो है उसको थोड़ा-सा ऊपर रखें, ताकि दिन की रोशनी आने पर, जैसे कि आपने देखा होगा कि परिंदे भी सुबह को जो है उठ जाते हैं और वो अपने उठने का सिग्नल जो है, वो अपनी चोंच से जो है वो आवाज़ निकाल कर देते हैं। तो इसी तरह से ये मामला है कि सूरज भी जो है, वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है और उसकी रोशनी जो है, वो लोगों को सिग्नल देती है कि उठ जाएँ, अब जो है वो सुबह हो गई है, लिहाज़ा अपने काम-काज पर जाएँ। तो ये इस हवाले से थी, चूँकि अक्सर लोगों को जो है वो अंधेरे में सोने की आदत होती है, तो इस हवाले से ये तहकीक जो है, ये एक्सपर्ट्स की आई है, तो वो कल मैंने जो है वो अपने व्लॉग में बयान की थी। मिर्ज़ा साहब, आपका टाइम भी कीमती है, आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, जिन जिन ममालिक में रहते हैं वहाँ की सियासत नहीं करते, जिन जिन ममालिक से आए हुए हैं उन मुल्कों की सियासत करते हैं, जबकि उनके गुरु सारे जो हैं वो मुल्क से बाहर रहते हैं। तो आने वाले वक्त में स्पेन में क्या होगा? सर स्पेन नहीं, पूरे यूरोप में ये होगा। असल में पता मसला क्या है? ये जो हम पाकिस्तान की यहाँ पे सियासी जमातें बनाकर बैठे हुए हैं और उनकी तकरीबात यहाँ पर कर रहे होते हैं, तो ये कह लें कि हम अपनी जहालत के ऊपर सबसे बड़ी मोहर लगा देते हैं कि हमसे बड़ी जाहिल कौम कोई नहीं है। लिहाजा या तो यहाँ पे हमें सियासत में मौका ना मिले, तो फिर हम कहेंगे हम पाकिस्तान की सियासत करेंगे। लेकिन जब हमें यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यहाँ की सियासी जमातें अपने बाजू खोल कर उन लोगों को वेलकम करती हैं कि जो यहाँ पर नेशनल हो चुके हैं, जिनके पास यूरोप का पासपोर्ट आ चुका है, तो अब उन लोगों को तो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर स्पेन में कई दफ़ा इलेक्शन में पाकिस्तानी कैंडिडेट भी आए हैं लिस्टों के अंदर। तो यानी कि यहाँ पर तो आसान भी काम है। यहाँ पर वो ना तो करोड़ों रुपया चाहिए होता है इलेक्शन कैंपेन के लिए, ना ही वोटरों की खातिर मदारत होती है, ना ही पार्टी फंड देना होता है, ना ही पार्टी लीडर की खुशामद करनी पड़ती है। तो यहाँ पर तो मैदान ज़्यादा खुला हुआ है। लेकिन चूँकि जहालत जो है वो हमने गोडे-गोडे अपने पाली हुई है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर बात है कि फिर हम वही काम करते हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पर पाकिस्तान की जमातें बनाकर बैठ जाते हैं, जिसका करना कराना कुछ नहीं होता, बल्कि जब पाकिस्तान से लीडर आता है, तो हम उसके भी जो है वो खर्चे बर्दाश्त करते हैं, होटलिंग के भी और उसके सारे खानों के भी और उसके जलसे इजलासों के भी। तो लिहाज़ा उनकी तो मौजें होती हैं सर, उनको तो मुफ्त के जो है वो लद्दू बैल मिले होते हैं, वो उनके ऊपर बैठ के सवारी कर रहे होते हैं। वो पाकिस्तान में भी जब चाहते हैं उनको फंड मँगाते हैं। आप देखें ना, एक पाकिस्तान की पार्टी है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। उसके इंटरनल पार्टी इलेक्शन जो है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो पाकिस्तान में तो होते नहीं हैं, लेकिन यूरोप में हर साल जो है तमाम के साथ मुनक्किद किए जाते हैं। उसकी क्या वजह है? कि सर वो फंड इतना वो जो है उसके ऊपर इकट्ठा होता है, जो मेंबरशिप है, तो लिहाज़ा उनका जो ओवरसीज़ का चैप्टर है, उसने एक अच्छी खासी दुकान खोली हुई है, यूरो, डॉलर और पाउंड कमाने की। लिहाज़ा वो हर साल यहाँ पर मेला सजाकर बैठ जाते हैं कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। लेकिन जहाँ पे असल पार्टी बेस करती है पाकिस्तान में, वहाँ पर कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कोई वजूद ही है। बल्कि उसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो है, वो बेस के ऊपर एक केस में जो है, खान साहब को सज़ा भी है, बल्कि फॉरेन फंडिंग केस भी इसी जो है मामले की जो है वो जड़ है। तो ये यानी कि सारे मामला तो ये ख़ैर पीटीआई नहीं, हर जमात का ये मामला है। यहाँ पर नून लीग भी इसी तरह से है, काफ लीग भी इसी तरह से है और भी दीगर जमातें इसी तरह से हैं। और वो यहाँ पर अपनी दुकानें सजा के बैठी हैं और अपना कारोबार ज़िंदगी चला रही हैं। इससे ज़्यादा उनकी कोई हकीकत नहीं है सर। मिर्ज़ा साहब, इन पीरों से कोई जान छुड़ाने का तरीका है आपके पास? नहीं, सियासी पीरों की बात कर रहे हैं या मज़हबी पीरों की बात कर रहे मैं हैं? सियासी पीरों को भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो दूसरों की भी बात कर लेते हैं।
सर देखें ना, अब पीरों का मामला भी ये है कि उनके जिन आबाओ अजदाद की बुनियाद के ऊपर उनकी गद्दियाँ बनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल सुल्तान बाहू के जो है वो मज़ार का जो मामला है वो तो पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन उनके सारे खानवादे के लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। ज़ाहिर बात है कि यहाँ क्या अब हुआ है कि पाकिस्तान में वो आरामदेह ज़िंदगी नहीं है, वो अच्छा मौसम नहीं है, वहाँ पे वे ऑफ लाइफ वैसा नहीं है, लिहाज़ा वो यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ पर जो है उनको भेड़ें भी बड़ी आसानी से मिल जाती हैं कि जो उनके चंदे और नज़राने जो है वो पाउंडों में देते हैं, यूरोज़ में देते हैं या आपके करोनों के शक्ल में देते हैं। तो लिहाज़ा वो उनकी मौजें लगी हुई हैं और वो आस्थानें वहाँ पर छोड़कर, और आस्थानों पे भी वो गए छोड़े नहीं हैं। जब वहाँ पे मेले का सीज़न होता है या उसका सीज़न होता है, तो वहाँ पर भी वो पहुँच जाते हैं उसमें हिस्सादार बनने के लिए। तो लिहाज़ा वो तो दोनों तरफ से, और यही मामला सियासी लोगों का भी है कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी उसी तरह से डुबकियाँ लगा रहे हैं और यहाँ पर भी आकर वो जो है उसी तरह की एक अपनी जो है वो झील बनाकर उसके अंदर डुबकियाँ लगाते हैं। तो दो सियासी खानवादे हों या मज़हबी खानवादे हों, सर उनकी चाँदी है, उनके सर कड़ाही के अंदर है, उनकी जो है वो मौजें लगी हुई हैं और वो मौजों से फ़ायदा उठा रहे हैं। और उनको यहाँ पर जो है वो बहुत से बेवकूफ़ जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम यूरोप आ गए हैं तो हमसे ज़्यादा जो है वो कोई भी अक्लमंद नहीं है। लेकिन वो इस मामले में आकर जो है वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ और सबसे बड़े जाहिल साबित होते हैं। मिर्ज़ा साहब, आखिर में सरमायादारा लोगों ने, चिट्टे काले सुर्ख वालों ने, पैसे वालों ने अपने घर तो खरीद लिए, प्रॉपर्टीज बना ली, अपने माल्स बना लिए। तो अगर आम आदमी स्पेन में प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो क्या ये महंगी है या सस्ती है? नहीं, इस वक़्त तो महँगी है सर। लेकिन मिर्ज़ा आप साहब, खरीद आखिर सकते हैं, में लेकिन अगर यहाँ पे बैंक लोन के ज़रिए आप लें तो वो आपके लिए आसानी है। उसमें आपको मेरे ख़्याल 25% शायद रकम जो है एडवांस देना पड़ती है और बाकी जो है वो आपके साथ बैंक से आपको लोन लेना पड़ता है, जो फिर आपको अक़सात में अदा करना होता है इंस्टॉलमेंट में। तो उससे आम आदमी भी ले सकता है सर। मिर्ज़ा साहब, आखिर में क्या पैगाम देंगे? आखिर में सर यही पैगाम दूँगा, क्योंकि मैं तो यूरोपीय कम्युनिटी से मुख़ातिब हूँ, तो उनसे बस यही मैं कहूँगा कि सर यहाँ पे जो है वो सोचें अपने बारे में। ये पाकिस्तान के मामलात वहाँ पर अगर वो पाकिस्तान छोड़ के आ गए, अपने घरवालों को छोड़कर आ गए, अपने माँ-बाप को छोड़कर आ गए, तो अब ज़ाहिर बात है कि ये बाकी मामलात भी छोड़ें यार, और यहाँ पर रहकर जो है अपनी कम्युनिटी के हवाले से जो है वो बेहतर काम करें। यहाँ पर स्कूल कायम करें, यहाँ पर एजुकेशन के सिस्टम में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डालें, ताकि यहाँ पर जो पढ़ लिख कर बच्चे सामने आएँगे, वो असल में हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतरी का काम कर सकेंगे। क्योंकि पाकिस्तान से जो पढ़ लिख कर आए हैं, उनके लिए तो यहाँ पर स्कोप नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो लोग यहाँ पर आगे लगे हुए हैं, उन्होंने जैसे भी बाई हुक बाई क्रुक जो है अपने कारोबार जमाए हैं और उसके बाद वो जो है वो केले के खजाने का सांप बनकर बैठे हुए हैं और वो यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों को आगे नहीं आने देते। लेकिन जो यहाँ से पढ़ लिख कर आएगा उसको ज़ुबान के ऊपर भी अबूर होगा, यहाँ के कानून के ऊपर भी अबूर होगा, यहाँ की वो लैंग्वेज को भी बआसानी पढ़ सकेगा, लोगों से भी बड़े अच्छे अंदाज में मुखातिब हो सकेगा। तो उन लोगों को जो है वो आगे आना चाहिए और उनके लिए जो है वो हमें राह हमवार करनी चाहिए। तो यही मेरा मैसेज है कि अपना टाइम जो है वो किसी और राह में खोटा ना करें, बल्कि जो असल आपकी राह है उसके ऊपर लगाएँ, ताकि आपको और आपकी आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो, ना कि आप जो है वो दूसरे मामलात में। और ख़वातीन को भी ख़ास तौर पे इस मामले में आगे आना चाहिए कि हमें जो है वो अपनी दीगर महफ़िलें जमाने की बजाय इस तरह की महफ़िल जमानी चाहिए, ताकि उन ख़वातीन से हमारा इंटरेक्शन हो और उनके साथ बैठकर गपशप हो, ताकि उनको भी हमारा वे ऑफ़ जो है वो थिंकिंग पता चले और हमें इनका वे ऑफ़ थिंकिंग पता चले। और जब तक हम इनके अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे, उस वक़्त सर जो है वो असल में हम अपने हदफ तक नहीं पहुँच सकते हैं। मिर्ज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिसनर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने गुफ्तगू सुनी। तो आपकी बड़ी मेहरबानी राज साहब, आप हमें मौका देते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी सर। सामान्य नाजरीन, ये थे मिर्ज़ा नदीम बेग साहब, जो कि स्पेन की फ़िज़ाओं से हमारे साथ बात कर रहे थे। चूँकि हम मौसम पर बात कर रहे थे, ओवरसीज़ की बात कर रहे थे, चूँकि लोकल हमारे मफादात किस तरह होते हैं और हम किस तरह चलना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमें जिन ममालिक में रहते हैं उन ममालिक की सियासत करनी चाहिए, उन पार्टियों की सियासत करनी चाहिए।
سب ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا. ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اپنی رائے دینا چاہتا ہے، اس کے لیے ذرا آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.